Hello, my dear students. We have finished the discussion on units and measurement. I hope you have understood all the concepts. Now, let us try to solve some questions. Okay, first we will take the questions from your textbook in the exercise. Okay, we will not take them exactly in the serial order. So, I have chosen some questions which I felt will be helpful for you. One question is, it is given that the kinetic energy of a particle depends upon its mass and velocity. Okay, kinetic energy depends upon mass and velocity. By using dimensional analysis, we have to determine the relation between kinetic energy and the mass and velocity. Okay, now it is given that the energy depends upon mass and velocity. So therefore, suppose energy is proportional to mass and velocity. So therefore, energy is equal to some constant k into some power of mass into some power of velocity. We don't know now what power, that we will have to determine by dimensional analysis. अब एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी का अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में के जो यूनिट्स होंगे वही राइट हैंड साइड के होने चाहिए, तभी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा फॉर्मूला. अब लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स मैं बता चुका हूं कि एनर्जी और वर्क के यूनिट्स सेम आएंगे फिजिक्स में. ओके, तो मतलब एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न एनर्जी एंड वर्क इज सेम. सो नाउ एनर्जी है तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे, m1 l1 t minus 2 into m1 l2 t minus 2. These are the dimensions of energy. Okay, और इस तरफ है मास. सो मास इज m1 to the power of a, और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज व्हाट l t minus 1 l1 t minus 1 to the power of b. अब कंपेयर करेंगे, इस तरफ m का पावर क्या है 1, सो 1 मस्ट बी इक्वल टू, इस तरफ m कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे m to the power of 1 to the power of a, that is a. देन L के पावर्स इस तरफ देखेंगे, L का पावर इस तरफ क्या है 2. ओके, एंड इस साइड में L1 टू द पावर ऑफ B मतलब B. T के पावर्स हम लोग मैच करेंगे, -2 इज इक्वल टू इस तरफ क्या है -B. सो इसमें से या इसमें से इतना पता चल जाएगा कि B इज इक्वल टू 2. Okay, और यहाँ से A is equal to 1. Therefore, we can write the formula. This kinetic energy E or kinetic energy is equal to some constant K into M to the power of A is 1, into V to the power of B is what 2. So, some constant K into mv square is the dimensional formula of kinetic energy. Now this half, this k is found to be equal to half. Okay, this is a constant and this has been found to be equal to half. Therefore, kinetic energy is equal to half of m into v square. Clear? So dimensional analysis use करके हम लोग relation establish कर सकते हैं between kinetic energy and the product of mass and velocity, जो कि यहाँ पे you can see. Okay. Then the next question is, suppose the two masses are given, m1 is equal to 15.5 and the error is 0.2 इतना kgs. Okay, 15.5 kg
with an error of 0.2 और mass 2 है, this is equal to 27.3 plus or minus 0.3 kilograms. Okay, now what we have to determine is what is the sum of these two masses. Okay, ये दो masses दिए हैं m1 और m2, हमको ये find out करना है कि what is the sum of the two masses and what is the error in the sum. अब sum of the two masses will be equal to what? This is equal to m1 plus m2. Okay, now m1 plus m2, m1 कितना है 15.5, m2 कितना है 27.3, तो ये कितना हो जाएगा? 42.8 kgs. ओके, अब जो एरर है, सम में एरर का क्या होता है? एरर का भी सम होता है. ओके, रिजल्ट में व्हेन यू ऐड द टू टर्म्स, टू क्वांटिटीज, देन देयर एरर आल्सो इज एडेड अप. सो देयरफॉर इसका एरर कितना हो जाएगा? द एरर विल बी प्लस और माइनस 0.2 plus 0.3 मतलब 0.5 kgs. So this will be the sum of the mass and this will be the error. Okay, so ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब सम करेंगे हम लोग या एडिशन करेंगे तो एरर ऑल्सो गेट्स एडेड. ओके, सो दिस इज दिस. चलो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट अ पार्टिकल या अ बॉडी इज ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज गिवन एंड देन टाइम इज गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वेलोसिटी. ओके, नाउ डिस्टेंस इज, व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन? 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड. 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड. So what we have to calculate is what is the speed and then what is the error. ओके, अब स्पीड कैलकुलेट करना तो आसान है. स्पीड यू नो इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? 5.2. व्हाट इज द टाइम? 100 सेकेंड. सो व्हाट इज द स्पीड? 0.052 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इजी स्पीड. अब एरर का जहां तक सवाल है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवीजन कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रिजल्ट में एरर कैसा रिफ्लेक्ट करता है? इन द रिजल्ट द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. ओके, तो अब जो रिलेटिव एरर होगा रिजल्ट में, दैट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन दिस. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिलेटिव एरर होगा? इसमें एरर कितना है? देखिए, रिलेटिव एरर, इसमें एरर 1 सेकेंड है. हाँ, सो दिस इज द एरर. तो रिलेटिव एरर क्या होगा? एरर अपॉन दिस क्वांटिटी. सो 1/100 इज द रिलेटिव एरर प्लस टाइम में क्या होगा रिलेटिव एरर? सॉरी, टाइम में ही हमने 1/100 है. डिस्टेंस में व्हाट इज द रिलेटिव एरर? 0.1 अपॉन 5.2. ओके, प्लस इसमें कितना रिलेटिव एरर होगा? 1 अपॉन 100. सो नाउ ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/52 प्लस 1/100. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/52 will be equal to what?
फाइंड आउट करेंगे 1/52, सो 0.0, ओके, दिस इज 48, 5 9s are 45, ओके, सो 0.019 इधर होगा, 0.019 plus this one is what, 0.01, okay, so this comes to what, just 9, 1 plus 1 2 0, so this is 0.029, okay, so this is the error. So relative error in the measurement will be equal to what, 0.029, okay. So multiplication या जब division करेंगे तब the relative error in the result will be equal to the sum of the relative errors in the observations. So observation में relative errors कितने थे ये पहले find out करेंगे, 1/52 मतलब 5.2 और ये 1/100, इनको ऐड करेंगे तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, इसमें क्या रिलेटिव एरर होगा वो हमको पता चल जाएगा, ओके, तो दिस इज द रिलेटिव एरर. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100, क्लियर. चलो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. See, in one problem it is given that यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका स्ट्रेंथ है B, ओके. इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे, अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, इट विल बी लाइक दिस, क्लियर. सो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर. सो उसने दिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉब्लम में कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इक्वल टू B into E into V, B into E into V. So he is asking us to determine the dimensions of B. Here B is what, the magnetic field, strength of the magnetic field. अब इसके हम लोगों को डिटरमाइन करने हैं डायमेंशंस, तो क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला लिखेंगे, B is equal to F divided by E into V. Now this V is what, velocity. अभी क्या करेंगे, बाकी सब चीजों का डायमेंशंस लिखेंगे. फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशंस क्या है, M1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशंस है, क्लियर. अपॉन वेलोसिटी क्या है, L1 T-1, और दिस इज द चार्ज. चार्ज हम लोग जानते हैं कि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. नाउ चार्ज, करंट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम. सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, I इनटू t. अब यहाँ पे I इनटू t, I इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, I टू द पावर ऑफ 1 इनटू t टाइम, इट इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. अब हम लोग ओवरऑल B का डायमेंशंस लिख पाएंगे. अब यहाँ पे M देखिए, M एक ही है, ऊपर ही है, M1 और नीचे तो है नहीं. L यहाँ पे L टू द पावर ऑफ 1 है, इधर L टू द पावर ऑफ 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो L टू द पावर ऑफ 0. देन T टू द पावर ऑफ -2, इधर T टू द पावर ऑफ -1, तो एक ये यहाँ का -1 तो कैंसिल हो जाएगा इससे, या फिर दिस इज T टू द पावर ऑफ 1, दिस इज T टू द पावर ऑफ -1, दिस विल कैंसिल, सो व्हाट रिमेंस इज T टू द पावर ऑफ -2. अब I तो ऊपर कहीं है नहीं, सो दिस विल बी I, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो I टू द पावर ऑफ -1. So these are the dimensions of strength of the magnetic field. Clear? So इस तरह से we can determine this thing, strength of the dimensions for strength of the magnetic field. Okay. Next question is,
somebody is performing the experiments and during the experiments he is measuring the length. अब एक लेंथ मेजर करना है, वो 4 ऑब्जर्वेशंस लेता है. 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? 3.11 सेंटीमीटर. सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 3.13 सेंटीमीटर. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 3.14 centimeters, and the last observation is again 3.14 centimeters. Okay, ये 4 observations है इसके. अब he is asking us to calculate what is the mean value of A. अभी A mean is equal to what? You know that it is A1 plus A2 plus A3 plus A4 upon 4 ऑब्जर्वेशन से, इसलिए अब इनको ऐड करेंगे. 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 अपॉन 4. So we will add them up. This is equal to what? This is 12.52. Okay, divided by 4. So this comes to what? 4 3s are 12 point. So 3.13 centimeter is the mean value. Okay, A mean is equal to 3.13. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर. अब एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते समय डेल्टा A1 विल बी इक्वल टू व्हाट? मॉड, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम लोग ओनली वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन डायमेंशंस. उसका साइन क्या है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड. सो हमारा A मीन कितना आया है? 3.13 माइनस 3.11. ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर. अब डेल्टा A2 will be equal to what? 3.13 minus 3.13. ये A mean minus this. Okay, so this is equal to what? 0. Delta A3 क्या होगा? A mean 3.13 minus 3.14. So ये क्या है? minus 0.01 आएगा, लेकिन हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, इसलिए तो मॉड लिया है. So this is equal to 0.01 सेंटीमीटर. Delta A4 same thing, 3.13 minus 3.14. This is equal to 0.01 centimeter. ये क्या हो गए? Absolute errors. अब mean absolute error will be equal to what? Delta A mean will be equal to what? कितना error है? Delta A mean will be equal to, ये सबको error जितना भी है उनको add करो. 0.02 plus 0 plus 0.01 plus 0.01 divided by 4. So this is equal to 0.04 upon 4, that is equal to 0.01. Okay, so this is mean absolute error. Okay, delta A mean. So हम लोगों को अभी delta A mean भी मिल गया है, mean absolute error भी. अब क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर से हम लोगों को रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है. रिलेटिव एरर इज व्हाट? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज द फार्मूला? डेल्टा ए मीन मतलब 0.01 अपॉन ए मीन. ए मीन का वैल्यू कितना था? 3.13. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 313. ओके, इसको फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट द रिलेटिव एरर. अगर इसी को परसेंटेज एरर में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन 3.3 मल्टीप्लाई दिस बाय 100. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. ओके, जस्ट नोट डाउन. In the next problem, see in the next problem
we have been given mass. Now mass of the body is equal to 60 plus minus 0.3 grams, and velocity is given to be equal to 25.0 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है. अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसका एनर्जी डिटरमाइन करने में, काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने में व्हाट इज द रिलेटिव एरर. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर. हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें जो एरर आएगा, सिंस दिस इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन, so relative error in the result will be equal to what? The sum of the relative errors in the observation. मतलब relative error in the observation of m plus relative error in the observation of v plus relative error in the observation of v. v का स्क्वायर है ना, मतलब v into v है. ओके, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कर सकते हैं हम लोग. सो क्या करेंगे, मास के मेजरमेंट में व्हाट इज द रिलेटिव एरर. देखिए ये तो एरर है, सिर्फ रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, तो 0.3 अपॉन ये 60, ये हो गया रिलेटिव एरर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये v स्क्वायर है, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी 0.1 अपॉन 25. सो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे. 0.3 अपॉन 60 प्लस 0.2 अपॉन 25. So this is equal to 0.3 upon 60 plus 0.2 upon 50. अब क्या करेंगे, this will be no, we will take the LCMs of for this. So this is 300. So this will be equal to what? 5 into 0.3 plus this is 12 into 0.2. So this will be equal to 1.5 plus 2.4 upon 300. Okay, so this will be equal to 3.9 upon 300. This is equal to 1.3. We will divide both numerator and denominator by 3. So 1.3 upon 100. So इसका परसेंटेज एरर हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100. सो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 1.3 अपॉन 100 इनटू 100. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. 1.3% is the percentage error. Okay, so these are some of the problems that we have discussed today. I hope you have understood this. There are some more problems we will discuss in the next lecture. Thank you very much.